وادی کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ شروع، کئی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ ساتھ ژالہ باری کا امکان۔ زمیندار طبقے کو موسمی صورتحال سے باخبر رہنے کی ضرورت، 2 جون سے موسمی صورتحال میں بہتری کے آثار، محکمہ موسمیات۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز ایٹ 6 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سعید روح فاروقی۔ ناظرین، نیوز ایٹ 6 میں پہلے بات کریں گے این آئی کی طرف سے حریت کانفرنس لیڈر محمد یاسین ملک کو پھانسی کی سزا کا مطالبہ کرنے کو لے کر جموں کشمیر کے سیاسی لیڈران کا رد عمل آ رہا ہے، اور آج یاسین ملک کو پھانسی دینے کے معاملے کو لے کر بات کی ہے عوامی نیشنل کانفرنس کے نائب صدر محمد مظفر شاہ نے۔ انہوں نے کہا کہ یاسین ملک کو پھانسی کی سزا دینے کے لیے دہلی ہائی کورٹ میں عرضی جو دی گئی ہے، مظفر شاہ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کا اصل مقصد ہے کہ جموں کشمیر کو پھر سے ووٹ بینک کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ بی جے پی اپنا گراؤنڈ کھو چکی ہے اور الیکشن ہار رہی ہے، جس کی وجہ سے اب یاسین ملک کو جو ہے دلی ہائی کورٹ سے پھانسی کی سزا کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ جموں کشمیر کو پھر سے ووٹ بینک کے لیے استعمال کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ یاسین ملک، جس کو پہلے ہی عمر قید کی سزا دی چکی ہے، کہ عمر قید کی سزا کو اگر کسی کو سزائے موت کی سزا دی جاتی ہے تو اس کو عمر قید کی سزا میں کنورٹ کرنے کے لیے پیٹیشن دی جاتی ہے یا اس پر عرضداشت دی جاتی ہے، پر یہاں الٹا ہو رہا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ جیسے جموں کشمیر ایک اسٹیٹ تھی، اس کو یو ٹی میں تبدیل کیا گیا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یو ٹی کو تبدیل کر کے اسٹیٹ بنائی جاتی ہے، پر جموں کشمیر میں سب کچھ الٹا ہو رہا ہے۔ اب انتخابات نزدیک آ رہے ہیں اور بی جے پی اپنی ساخت کھو چکی ہے، جس کی وجہ سے اب یاسین ملک کو پھانسی کی سزا کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ایک بہت ہی بدقسمتی ہے کشمیر کے لیے کہ کشمیر کو دوبارہ پولیٹیکلی ووٹ بینک پالیٹکس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کل ہی آپ نے سنا ہے کہ ہمارے فارمر گورنر ستیہ پال ملک صاحب کیا بول رہے ہیں بی جے پی کی پالیسکس کے متعلق۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے، اور میں یہ بات آج یہاں کے اپنے کشمیر سے یہ عام آج تاثر ہے ہماری سڑکوں پہ، کہ ہم کو آپ نے ایک سٹیٹ کو یو ٹی میں تبدیل کیا، الٹا کیا آپ نے، حالانکہ یو ٹی کو سٹیٹ میں آنا ہے۔ اسی طرح آج جہاں تک یاسین ملک کی اس کا کیس کا تعلق ہے، ان کو پورا ٹرائل کورٹ نے پوری ٹرائل کر کے 10-15 سال سے زائد اور ان کو لائف امپریزنمنٹ دی۔ اب آج این آئی لائف امپریزنمنٹ کو کنورٹ کروانا چاہ رہی ہے انٹو اے ڈیتھ پینلٹی۔ اٹ شوڈ بی ریورس۔ ڈیتھ پینلٹیز آر نارملی ان کو کنورٹ کیا جاتا ہے انٹو لائف امپریزنمنٹ۔ سو یہ ووٹ بینک پالیٹکس کے سوا ہم کشمیر سے اس کو اور کسی چیز سے تعبیر نہیں کریں گے، کیونکہ بی جے پی الیکشن ہار رہی ہے اور ان کو خدشہ ہے کہ وہ تینوں آئندہ کے جو الیکشن ہو رہے ہیں اپنے راجستھان، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، they are losing those elections، اور 2024 is a clear writing on the wall۔ so ہماری گزارش ان سے ہے، مہربانی کر کے، ہم نے 89 سے صرف یہاں پہ خون کی ہولیاں دیکھی ہیں، دوبارہ ایسی کوئی چیز مت کریے جس سے یہ ٹریگر ہو۔ مظفر شاہ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں G20 اجلاس کرایا گیا ہے، جس کو سرکار کہہ رہی کہ وہ کامیاب اجلاس رہا۔ اب سرکار کو چاہیے کہ سرکار چاہتی ہے کہ یہاں پہ انٹرنیشنل ٹورسٹ آئے، اور جس کے لیے ضروری ہے جو یہاں پہ افسپا جو قانون، افسپا جیسا قانون بنایا گیا ہے، اس کو ختم کرے، کیونکہ جن ممالک نے اپنے لوگوں پر پابندی لگائی ہے جموں کشمیر آنے کے لیے، وہ پابندی تبھی ہٹ سکتی جب یہاں سے افسپا جیسے قانونوں کو ختم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ G20 اجلاس
کے بعد اب سرکار اب سپا جیسے قانون کو بھی ختم کرے گی۔ جہاں تک G20 کا تعلق ہے، اسمارٹ سٹی کا تعلق ہے، بقول گورنمنٹ آف انڈیا کے جو یہاں کے منتظمین ہیں انہوں نے اس کو بہت ہی سکسیسفل قرار دیا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو بھائی پھر آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کو وڈرا کیجیے نا۔ آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کو آپ وڈرا کریں گے تو جو آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ فارنرز آئیں تو وہ خود بخود آ جائیں گے، کیونکہ ایڈوائزری ختم ہو جائے گی۔ تو کریے، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کو امیڈیٹلی وڈرا کریں گے۔ NIA کے ناظرین، سری نگر کے بٹمالو علاقے میں آج احتجاج کیا لوگوں نے، اور احتجاج کیا پری پیڈ سمارٹ میٹرز کو نصب کرنے کے حوالے سے۔ لوگوں نے کہا کہ محکمے کو، سرکار کو چاہیے کہ وہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں، اور ان کو چاہیے کہ کوئی کرائیٹیریا اس کے لیے بنایا جائے۔ جیسے راشن حاصل کرنے کے لیے سرکار نے پہلے ہی درجہ بندی کی ہے، کرائیٹیریا بنایا ہے، ویسے ہی درجہ بندی اس میں بھی کیا جائے، تاکہ جو غریب عوام ہے ان کو دو چار نہ ہونا پڑے مشکلات سے، کیونکہ یہاں پہ مزدور لوگ ہیں، تو مزدور لوگ کیسے پری پیڈ جو میٹرز لگا، سمارٹ میٹرز جو لگا رہے ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں وہ فیس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ علاقے میں 4 دن سے بجلی سپلائی کو بند رکھا گیا ہے۔ یہ انہوں نے محکمہ PDD پر غم غصے کا اظہار کیا کہ ان کو بجلی سپلائی بند نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پروٹیسٹ پرامن ام موجود کران کہ یہ سوری بٹمال ونکن پروٹیسٹ کران ام موجود کہ اچھ پاورس 3 دۄہ پٮ۪ٹھ 4 دۄہ پٮ۪ٹھ اوس اس پاور کٹ کوٚرمُت تِمو وداؤٹ اینی نوٹیفکیشن ژوٚٹ اَسہِ یِمو پاور یِمو دِژ اَسہِ کانٛہہ نوٹیفکیشن اَسہِ چھِ ییٚتہِ واریاہ پیشنٹ یِم آکسیجنس پٮ۪ٹھ چھِ ونکٮ۪ن ڈِپینڈنٹ اَسہِ چھِ واریاہ تکلیف ووت ونکٮ۪ن اَسہِ تِمن پیشنٹن تِم چھِ اَسہِ ونکٮ۪ن ییٚتہِ یہِ آکسیجن کنسنٹریٹڈ پیشنٹ بیٚیہِ چھِ اَسہِ یہِ محلہٕ تہٕ یہِ ایریا چھِ اَسہِ سورُے پاور ژٹنُک ریٖزن حظ چھِ کہِ سمارٹ میٹر حظ چھِ اَسہِ لاگنہٕ یِوان مگر یہِ نہ حظ چھُنہٕ یہِ ایریا یِوان سمارٹ میٹر یِمن چھُنہٕ تیوٗتاہ اَسہِ چھُنہٕ طاقت تیوٗتاہ کینٛہہ أسۍ ہٮ۪کو فیٖس بٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو یوٗتاہ کٔرِتھ ایفٲٹ فیٖس اَسہِ چھِ یہِ ایریا سورُے چلان بیت المالس پٮ۪ٹھ بیت المال چھِ کران ییٚلہِ یِمن لُکن یی 4-5 ساس رۄپیہِ یِم کتہِ ہٮ۪کن پتہٕ بیت المالس تہِ چلٲوِتھ تِم لُکھ تہِ ہٮ۪کن نہٕ پتہٕ پٔکِتھ کِہیٖنۍ نہٕ اَسہِ چھِ یِہوے گورنر صٲبس اپیل تُہۍ کٔرِو پنُن سینس آف ہیوٗمر استعمال اگر تۄہہِ چندن منٛز چھِ کرایٹیریا کٔرمٕتۍ حظ پنٕنۍ BPL AAY وغیرہ حظ یُس یہِ الیکٹرسٹی دی اتھ منٛز کیازِ کٔرِو نہٕ تُہۍ کرایٹیریا حظ یہِ چھِ یپٲرۍ چھِ اکثر طبقہٕ چھُ یپٲرۍ غریٖب حظ یتھ پٮ۪ٹھ ترٲیِو تُہۍ نظر اکثر چھِ یپٲرۍ چلاوان حظ آٹوٗ اکثر چھِ چلاوان صبحٲے منڈی منٛز ریڈٕ اگر تۄہہِ باقین چیٖزن منٛز راشن کارڈس منٛز چھُو کٔرمٕتۍ کرایٹیریا یتھ منٛز تہِ بنٲیِو تُہۍ اکھ کرایٹیریا BPL وغیرہ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ تتھ منٛز چھُو کوٚرمُت استعمال یتھ منٛز تہِ کٔرِو تُہۍ تِتھے کٔنۍ حظ کرایٹیریا استعمال یہِ چھِ سمپل کتھ حظ اگر کٲنٛسہِ ان پڑس تہِ ونو تٔمِس چھِ ترِ کتھ حظ سمجھ اگر یہِ بجلی چھِ اتھ بجلی منٛز کیازِ چھُنہٕ تُہۍ کران حظ کرایٹیریا استعمال سون مُدا مقصد چھِ یی کہ یُس یہِ علاقہٕ چھُ یہِ چھُنہٕ تیوٗتاہ ییٚتہِ چھِ اکثر حظ موٚزوٗر ییٚتہِ چھِ اکثر حظ موٚزوٗر آج بٹمالو میں احتجاج ہوا کئی علاقوں میں اس سے پہلے بھی احتجاج ہوا جہاں پہ بھی محکمے نے کوشش کی سمارٹ میٹرز نصب کرنے کی کہیں پہ لگانے نہیں دیا گیا اگرچہ کہیں پہ لگایا گیا پر اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے کہ سرکار کو چاہیے کہ اس فیصلے کی طرف نظر ثانی کرے کیونکہ غریب عوام ہے تو غریب عوام کے لیے یہ بڑی مشکلات ہے کہ یہاں پہ پری پیڈ سمارٹ میٹرز نصب کیے جا رہے ہیں ہم اسی معاملے پہ بات کریں گے کہ یہ منصوبہ جو سرکار نے بنایا کب تک مکمل ہوگا کتنے سمارٹ میٹرز پری پیڈ سمارٹ میٹرز لگائے گئے اب کتنے اور لگانے باقی ہیں اس سے محکمے کو کیا فائدہ مل سکتا ہے اس سے عوام کو کیا کوئی فائدہ مل سکتا ہے جس طرح عوام احتجاج کر رہی ہے ان پورے معاملات پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن کے چیف انجینئر جاوید یوسف ڈار جڑے ہیں جاوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں جڑنے کے لیے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو پری پیڈ سمارٹ میٹرز ہے آپ نے کہا کہ کئی علاقوں میں پہلے ہی نصب کیے جا چکے ہیں وہاں پہ لگائے گئے ہیں کتنے علاقوں میں لگے ہوئے ہیں کتنے سمارٹ میٹرز لگے ہوئے ہیں ابھی تک کہاں تک لگانے ہیں اور منصوبہ کتنا ہے کیا پوری وادی کشمیر کو فیز وائز مینر میں ہے یہ لگانے ہیں جی جیسا آپ کو پتا کہ پچھلے سال ہم نے یہ میٹر لگانے کا سلسلہ جو شروع کیا تھا اور ابھی تک قریب 1,10,000 میٹر لگ چکے ہیں یہ اسمارٹ میٹر لگے ہیں اور بیشتر میٹر سری نگر میں لگے
लेकिन ये मरहला तौर से अब हमने जो बाकी टाउन्स हैं वहां भी शुरू किए हैं। अनंतनाग में मीटर लग रहे हैं, बिजवारा में लग रहे हैं, पुलवामा में भी लग रहे हैं। और जो हमारा जो मंसूबा है कि अगले 2 साल में पूरी वादी में, न सिर्फ वादी में कि पूरी जम्मू कश्मीर में 100% स्मार्ट मीटर्स लगेंगे। लेकिन इसके साथ ही जो ये स्मार्ट मीटर्स है इसमें एक प्रीपेड मोड भी है। तो दूसरा जो इसका फेज है जिसका जिक्र आपने किया, हम अब प्रीपेड मोड में जाने वाले हैं, जिसके जरिए जो लोग जो अभी तक बिल बाद में भरते थे, अब इन्होंने जैसे मोबाइल या हमारा जो डिश टीवी होता है तो उसका प्रीपेड मोड में पेमेंट करते हैं। पहले पेमेंट करते हैं और बाद में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमने अखबारात में इश्तिहारात भी निकले हैं जिस और हमने लोगों को एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने कैसे प्रीपेड में जाना है। और इसके अलावा अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हमारे सब डिवीजन ऑफिस आ सकते हैं, या जो हमारा टोल फ्री नंबर है, मैं इसी जानना चाहूंगा कि 180-766 आवाज आ रही है आपको? कर से जी आवाज आ रही है। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, सरकार प्रीपेड मीटर्स लगा रही है, कह रही है कि पूरी वादी कश्मीर में लगाएंगे। खासकर अगर देखा जाए तो फिलहाल जो टाउन है, श्रीनगर शहर है, ये टारगेट है कि यहाँ पे मुकम्मल किया जाए। पर लोग एहतजाज भी कर रहे हैं ना इसके खिलाफ कि इसके लिए आज बटमालू में एहतजाज हुआ, आपने सुना होगा। लोग कह रहे हैं कि इसके लिए कोई क्राइटेरिया बनना चाहिए, जैसे राशन हासिल करने के लिए सरकार ने क्राइटेरिया बनाया है, दर्जाबंदी की है। उस दर्जाबंदी की जरूरत है क्योंकि गरीब के लिए ये बड़ी मुश्किल है, उसके लिए एक बड़ा बोझ है कि इस तरह अगर ये नस्ब किए जाएंगे ये मीटर्स। इसमें ऑलरेडी एक किस्म की दर्जाबंदी है। एक तो जो जम्मू कश्मीर के जो टैरिफ है, यानी कि जो पर यूनिट रेट है, ये शायद मुल्क भर में सबसे सस्ता रेट है। उसके अलावा जो पहले 200 यूनिट है उनका रेट कम होता है। उसके अलावा जो 200 से 400 यूनिट है उनका थोड़ा बहुत रेट ज्यादा है। और 400 यूनिट से जो ज्यादा वो मैक्सिमम रेट पे जाता है। तो ऑलरेडी एक किस्म की दर्जाबंदी है। और जो आपने राशन का जिक्र किया, जब हम राशन लेने जाते हैं चाहे बीपीएल हो, वो तोल के दिया जाता है। इसी तरह जो बिजली भी है वो तोल के देनी है। तो इसलिए जरूरी है कि एक मीटर लगाया जाए जिससे पता चले कि एक सारिफ कितना खर्च कर रहा है। नहीं, आपने कहा दर्जाबंदी पहले है, जैसे राशन लाने के लिए लोग जा रहे हैं, जो आप अब स्मार्ट मीटर्स नस्ब कर रहे हैं, तो कैसे आप कन्विंस करेंगे उन लोगों को जो दर्जाबंदी चाहते हैं, जो ऑलरेडी दर्जाबंदी में है, कि उनके लिए कैसे फायदा मिल सकता है, वो उसी जुमरे में कैसे आ सकते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में है ये चीज है कि नहीं जी हमें प्रीपेड स्मार्ट मीटर अब लगाया जा रहा है जिसके जरिए से हमें पावर सप्लाई मिलेगी। तो कैसे आप उसको कन्विंस करेंगे? क्या वाकई में वो उस दर्जे में रहेगा, उसी हिसाब से उस पर जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगेगा? मैंने वही जिक्र किया कि मीटर है, स्मार्ट मीटर से कुछ अलग नहीं। जो जितनी बिजली खर्च करेंगे वो दर्ज करेगा। अब स्मार्ट मीटर में सिर्फ ये फायदा है कि ये किसी आदमी ने रीडिंग उठानी नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हमारे डाटा सेंटर में चली जाती है। बाकी दर्जाबंदी के ये बात मैंने जिक्र किया कि जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो रेट है बिजली का, वो मुल्क भर में शायद सबसे सस्ता है। इसके अलावा जो मैंने कहा पहले जो 200 यूनिट है उनका रेट कम है, और जो 200 से 400 यूनिट है उसका थोड़ा बहुत रेट ज्यादा है। यानी कि जो भी सारिफ है जिसकी कंजप्शन 400 यूनिट के अंदर न होगी वो ऑलरेडी कम रेट पे है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग है, लोगों के पास महकमे के रुकूमत काफी है, तो क्या वो रुकूमत हासिल करने से पहले ही स्मार्ट मीटर नसीब किए जाएंगे, या आप कैसे उनको हासिल कर सकते हैं? फिर क्योंकि एक नया प्रोसेस आप करने जा रहे हैं, आप लोगों के जिम्मे हैं, आप जितना बिजली कंज्यूम करोगे आप उतना खर्चा होगा, क्योंकि बिलिंग प्रोसेस खत्म होगा। तो वो जो आपका लास्ट पुराना बैलेंस है वो कैसे रिकवर होगा? वो तो उनको क्लियर करना होगा जहां पे प्रीमेड फंक्शन ऑपरेटिव होगा। पहले मरहले में जो पिछले साल हमारे मीटर लगे थे करीब 55,000 मीटर, ये प्रीपोड मीटर में चल जाएंगे। तो जैसे उनको मई का बिल अगले जून में आएगा, करीब 7 या 8 तारीख को आएगा, तो इन लोगों को वो बिल क्लियर करना होगा। उसी के साथ उनका जो कनेक्शन है वो प्रीपेड मोड में जाएगा। उनको कुछ टाइम मिलेगा, कुछ वक्त मिलेगा जिसमें वो जैसे हम मोबाइल का रिचार्ज या डिश टीवी का रिचार्ज करते हैं वैसे वो उसका रिचार्ज करेंगे। जावेद साहब, आखिर में जानना चाहूंगा मैं
मैं आखिर में जानना चाहूंगा, सरकारी महकमों के पास भी आपकी रुकूमत है जो भी वाजिबुल अदा है, क्या सरकारी महकमों से वो पैसा रिकवर कीजिएगा, वहां पे भी स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए जाएंगे? बिल्कुल, ये हर जगह होंगे, ये एक रिक्वायरमेंट है। जो आरडीएस स्कीम है उसमें भी एक रिक्वायरमेंट के सरकारी जो भी बिल्डिंग्स हो उनमें 100% स्मार्ट मीटरिंग होनी चाहिए, तो वो भी मरहलेवार तरीके से उनमें वहां भी स्मार्ट मीटर लगेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब वक्त देने के लिए, बात करने के लिए। चीफ इंजीनियर कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन जावेद यूसुफ डार बात कर रहे थे। स्मार्ट मीटर से आपको फायदा कैसे मिल सकता है, क्योंकि इसमें जो दर्जेबंदी की बात की जा रही है वो ऑलरेडी दर्जेबंदी इसमें है, और दूसरा कि जितना आप कंज्यूम करोगे उतना आपको खर्चा होगा, आप वो सीधे जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं, ये चीफ इंजीनियर साहब कह रहे हैं। और दूसरा ये कि जिन लोगों के पास रुकूमत है जो कि वाजिबुल अदा है महकमे का, पहले उनको भरना होगा, उसके बाद इस प्रोसेस के जरिए उनको बिजली मिल सकती है। नाजायज कब्जात हटाने के लिए सरकारी महकमे जो है वो दिन रात काम कर रहे हैं। खासकर अगर हम इरिगेशन की बात करें, क्योंकि नदी नालों पे लोगों ने कब्जा जमाया है, जहां तामीरात खड़ी की गई है या वहां पे पेड़ पौधे उगाए गए हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लोग शिकायतें भी करते हैं, क्योंकि उनकी ज़मीनों तक जो पानी है वो सप्लाई नहीं पहुंचती है। इस वजह से महकमा इरिगेशन बडगाम ने आज टेकीपोरा बडगाम में बाबकुल पर जो तामीरात खड़ी की गई थी उस पर कार्रवाई की, और इसके साथ साथ जो पेड़ पौधे लगाए गए थे वो भी हटाई गई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल बडगाम ने लोगों से गुजारिश की है कि इन नदी नालों पे कब्जा जो है वो ना करे, तामीरात खड़ी ना करे, क्योंकि इन नदियों के जरिए ही उनके ज़मीनों को पानी की जो सप्लाई है, सिंचाई है, वो मिल रही है। तो क्यों लोग इस तरह इन जो नदी नाले हैं इन पे कब्जा कर रहे हैं? इस टाइम बाबकुल के एम्बैंकमेंट पे खड़े हैं। ये जो बाबकुल है ये हमारी हाजी जो मेन कनाल है बडगाम की, जो कि इरिगेट करती है लगभग 8,800 हेक्टेयर अराजी को, उसकी ये एक माइनर है जिसको बाबकुल कहते हैं, जो कि कटी कनाल से निकलती है। आज हम यहाँ पर एक डिमोलिशन ड्राइव कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ लोगों ने यहाँ पे इलीगली कुछ नाजायज़ तामीरात किए थे, जिसमें एक फुटब्रिज भी इन्होंने बनाया था। तो उसमें हमें ऊपर से भी डायरेक्शंस थे और हमने खुद भी इसका कॉग्निजेंस लेके इनको प्रॉपरली एज पर J&K वाटर रिसोर्सेज एक्ट जो हमारा प्रोसीजर फॉलो करके हमने इनको नोटिस दिए। तो उसके बाद पूरा प्रोसीजर फॉलो करके इन प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट हम आज ये डिमोलिशन ड्राइव कर रहे हैं। इसकी हमने इससे पहले डिमार्केशन भी की थी इन प्रेजेंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिशियल्स और जो हमारे जिलदार होते हैं डिपार्टमेंट के, और डिमार्केशन करने के बाद ये प्रूफ हुआ है कि यहाँ पे एनक्रोचमेंट हुई है, तो वही एनक्रोचमेंट आज हम रिट्रीव कर रहे हैं एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, क्योंकि ये एनक्रोचमेंट अभी और भी है इसी कनाल पे, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। नाज़रीन, वादी कश्मीर के कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करें तो ये तबका भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। कई कानून जो सरकार की तरफ से नए लाए जा रहे हैं उस वजह से भी, और साल 2014 के सैलाब के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर्स की पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि साल 2014 के बाद सरकार के पास रुकूमत जो है वो करोड़ों में है, जो वाजिबुल अदा है कॉन्ट्रैक्टर्स की उनको नहीं मिल रही है। सरकार कहीं दे नहीं रही है, कहीं NOCs की बात कही जा रही है। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन फारूक अहमद डार ने सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश की है जो रुकूमत वाजिबुल अदा है सरकार के पास कॉन्ट्रैक्टर्स की वो जल्द से जल्द अदा करे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स की जो फैमिलीज हैं, जो उनके लोग हैं, बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं मुतासिर हुए हैं, बैंक करप्ट हुए हैं, बैंकों की तरफ से भी प्रेशर है। तो सरकार को चाहिए कि वो जो रुकूमत है वो जल्द से जल्द वागुजार करे। बद से बदतर हालात है कश्मीरी ठेकेदारों की, क्योंकि फाइनेंशियली हमारे ठेकेदार कमज़ोर है। उसका बड़ा सबूत है जो पिछले 6-7 सालों से जो हमारी आउटस्टैंडिंग है सरकार के पास, अभी तक वो रिलीज़ नहीं हुई। अलजी साहब को मैं अपील करता हूँ आपके वसादत से, यहाँ के ठेकेदारों को आप मौका दीजिए, जितनी इनकी आउटस्टैंडिंग है आप उनका ये पैसा छोड़े, आप देखें यहाँ की डेवलपमेंट कितनी रफ्तार पकड़ेगी। अगर इस वक्त 60% डेवलपमेंट की रफ्तार है, कम से कम जब यहाँ के ठेकेदार फाइनेंशियली साउंड हो जाएगा, कम से कम 100% रफ्तार होगी डेवलपमेंट के हवाले से। ये आपके वसादत से मैं एज प्रेसिडेंट कमिटमेंट देता हूँ यहाँ की जी सरकार को, आप इस पे अमल कीजिए। आप देखिए आने वाले टाइम में कितना अच्छा रिजल्ट होगा। बाहर की एजेंसी को हमें लाने की जरूरत नहीं है, बड़े मगरमच्छों को हमें लाने की जरूरत नहीं है। इससे एक्सचेकर सेव नहीं है, इससे एक्सचेकर लॉस है। और हेल्दी कंपटीशन फिर नहीं होता है, पार्टिसिपेशन बढ़नी चाहिए टेंडरिंग में। हेल्दी
धुरू टंगमर्ग से सराया की जो राबता सड़क है वो पिछले कई सालों से खस्ता है। लोगों ने कहा कि कई बार उन्होंने महकमे के पास भी अर्जदाश्त की, जिला इंतजामिया के पास भी, पर इस सड़क की तामीर के लिए कोई काम हाथ में नहीं लिया गया है और इस इलाके की तरफ सरकार तवज्जो नहीं दे रही है। आवाम को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। मागरे है तमारा से मैं ताल्लुक रखता हूँ। हमारा जो रोड है छांदिल बनेगामा से लेके ध्रुर तक, इसमें मैग्डमाइज किया गया है, लेकिन छांदिल से लेके सराय तक, सराय से ध्रुर तक इसको ऐसे ही रखा गया, जहां आप खुद भी देख सकते हैं बहुत दिक्कत की बात है। ध्रुर से लेके सराय तक कम से कम आपको 1 घंटे का सफर करना पड़ता है, जो खाली 5 मिनट का है। रोड इतना खस्ता है कि आप पैदल नहीं चल सकते, गाड़ी की बात ही नहीं है। हम आरएनबी से ये रिक्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी करके इस पे तवज्जो दिए। अब जो मौसम सही है, आप मैग्डमाइज कर सकते हैं, और जो दूसरी साइड में उसमें जो ड्रेनेज का मसला है वो ठीक करो। कम से कम पानी जो आता है जो रोड को पूरी तरह डैमेज करता है। देख सकते हो कि ध्रुर से लेकर सराय तक जो 5 मिनट का रास्ता है, उसमें हमें 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। जितना हमें श्रीनगर से आने में लगता है ध्रुर तक, उससे ज़्यादा टाइम हमें कभी कभार लगता है ध्रुर से सराय में गुजरने से। इससे मस नहीं हो रही है कि हमने पिछली बार भी बताया था कि इस रोड में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। कभी बीमार होता है तो दूसरी गाड़ी को निकलने का रास्ता ही नहीं होता है कि 1-1 घंटा हमें वहाँ रुकना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि मेहरबानी करके। नाज़रीन, वादी कश्मीर की बात करें तो अभी बारिशों का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में तेज बारिशें हो रही है और महकमे मौसमियात ने ये पेशेनगोई भी की है कि कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ साथ चालाबारी का इम्कान भी है। तो साथ ही जो ज़मींदार तबके के लोग हैं या हॉर्टिकल्चर सनत से जो लोग वाबस्ता है, उनको कहा गया है कि वो मौसमी सूरत हाल पर नज़र ज़रूर रखे और मौसमी सूरत हाल को देखकर ही अपने ज़मीनों पर या अपने बागात के अंदर दवापाशी या ज़मीनों के अंदर काम करें, क्योंकि मौसमी सूरत हाल पर नज़र रखना उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। और जून 2 से मौसम में बेहतरी का इम्कान जाहिर किया है। चलिए, इसके साथ ही अभी तक के न्यूज़ एट 6 पे बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक के लिए अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।